بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ابھی آپ بتائیں کہ آئینی ترمیم کے بعد مدارس بل پر دستخط کیوں روکے گئے؟ مدارس بل پہلے سینٹ سے پاس ہوا، صدر زرداری نے پھر دستخط کیوں نہیں کیے؟ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی ڈیرہ اسماعیل خان میں پریس کانفرنس۔ کہا کہ مدارس کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق ڈرافٹ تیار کیا گیا، دینی مدارس کے بل میں ترمیم کی گئی جسے ہم نے قبول کیا، معاملے کو الجھایا گیا، اچھے بھلے دانشور بھی کنفیوز ہوئے کہ مسئلہ کیا ہے، معاملے پر عدالت سے رجوع کرنا پڑا تو ضرور کریں گے، ملک کو دوبارہ بحرانوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ کیا صدر مملکت ایک ایکٹ کے اوپر یا ایک آئینی ترمیم کے اوپر جو پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے 2 بار اعتراض بھیج سکتا ہے؟ چیئرمین سینٹ جو قائم مقام تھے اس وقت، انہوں نے اس پر اصلاح کر کے اس پہ دستخط کر کے ایوان صدر کو واپس بھیجے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر دستخط کیوں نہیں کیے جا رہے؟ اس میں لکھا ہے مدارس کے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے۔ اتحادی تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ وابستہ کسی ایک مدرسے کی بینک اکاؤنٹ کھلا ہے کہ اس پر ہمیں اگر کورٹ کو بھی رجوع کرنا پڑے تو ہم جائیں گے۔ افغان تنازع سے پاکستان کو $600 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اہم انکشاف۔ وزیر دفاع نے تحریری طور پر وقفہ سوالان دہشت گرد تنظیموں فتنہ الخارج اور داعش کا مقابلہ کر رہا ہے اور عبوری افغان حکومت دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں بڑا انکشاف۔ کہا کہ افغان تنازع کی وجہ سے پاکستان کو مجموعی طور پر $600 ارب سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں فتنہ الخوارج اور داعش سے مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ عبوری افغان حکومت دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ ایسی تنظیموں کو آزادی سے کارروائیاں کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد سرحد پار سے کارروائیاں کرتے ہیں۔ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ اور ساز و سامان بھی ان کے پاس ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاک افغان سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے 200 کلومیٹر سے زائد علاقے پر باڑ لگائی گئی ہے، 1300 سرحدی قلعے اور چوکیاں تعمیر کی گئی ہیں، دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے خفیہ آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے شاید اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، جو لوگ 26 نومبر کو آئے وہ بھی پاکستانی تھے، یہاں بھی پاکستانی ہیں، بات چیت مفاہمت اور بیٹھ کر مسائل کا حل نکلتا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے مشورہ دے دیا، کہا کہ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو اور کھلے دل سے ہو۔ سوال کیا کہ ایسے بات چیت کیسے آگے بڑھے گی؟ کوئی ایک ملک کا نام دے جہاں احتجاج کا حق غیر مشروط ہے، کوئی احتجاج ایسا ہوتا ہے جہاں الجہاد الجہاد کے نعرے ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کے اندر جناب چیئرمین بڑے نشیب و فراز آئے اور ان سے ہم نے میرا خیال ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ جو لوگ وہاں سے آئے وہ بھی پاکستانی ہیں، اور امن اجتماع جس کو نام دیا جاتا ہے کہ یہ ایک پرامن اجتماع کا حق ہے، استحقاق ہے، بالکل یہ استحقاق ہے، لیکن دنیا کے 195 ممالک میں سے کسی ایک ملک کا نام دے دیں جہاں یہ استحقاق غیر مشروط ہے۔ اگر ہم مذاکرات کی طرف آتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بات چیت سے مسائل حل کرنے چاہیے، ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، کھلے دل سے ہو اور سیاسی فکر کے ساتھ ہو۔ اب یہ جو احتجاج ہوا ہے، پرامن احتجاج، اب آپ مجھے بتائیے جناب چیئرمین کہ پرامن احتجاج کوئی الجہاد کے نعروں سے شروع ہوتا ہے؟ چین کے شہر شنگھائی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا موسمیاتی تبدیلی کانفرنس سے خطاب۔ بتایا کہ پنجاب میں اسموگ سے معیشت پر برا اثر پڑا ہے، ہمیں اسکول بند کرنے پڑے ہیں، ہمیں صنعتیں بند کرنی پڑی ہیں، تاہم انسداد آلودگی کے لیے ہمارا ایک مکمل منصوبہ موجود ہے جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر کام کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس مسئلے کو نہ صرف یہ کہ خود روزانہ کی بنیاد پر دیکھا ہے بلکہ پہلے ایک مکمل جامع انسداد آلودگی منصوبہ بھی پیش کیا ہے۔ Whenever there's smog, we have to shut the schools down, we have to shut the industry down, everything comes to a grinding halt, everything comes to a standstill, and obviously it is for the betterment of the people, but it does take a toll on your economy, on people's health and the day-to-day affairs. So there is a complete plan: environmental conservation, biodiversity conservation, sustainable development, and most critical areas where we are working on daily basis is air pollution, improving the air quality standards, and eradicating smog. And since assuming office,
in end of February. I have not only dealt with this problem on day-to-day basis, but I have given a complete, comprehensive and an overarching first ever smog mitigation action plan. तोशाखाना 2 केस से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद में तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई है। इस केस की इब्तिदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल किया गया था। और इस बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब। एहसान साहब बताइएगा, फर्द जुर्म आयद कर दी गई है तोशाखाना 2 केस में, क्या कहेंगे? इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जब भी को आपको स्टेट गिफ्ट मिलता है तो आप आके उसको स्टेट डिपॉजिट करवाते हैं और उसके बाद फिर आप उसकी जो है अगर लेना चाहें तो एक वैल्यूएशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। लेकिन इन जो सेट से इनको स्टेट डिपॉजिट नहीं करवाया गया। दूसरा इस चीज के अंदर ये है कि जो तोशाखाना 1 था उसके अंदर भी जो ट्रायल कोर्ट से उन्होंने इनको कन्विक्ट किया, बट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो मामला गया। और इस केस के अंदर भी ये है कि पहले इनकी एक्विटल्स की एप्लीकेशन थी जिसको स्पेशल जज सेंट्रल जो है उन्होंने उसको डिसमिस किया, और अब ये है कि जो चार्ज जो है वो फ्रेम किया है। जिस तरह के ये फैक्ट्स इस केस के अंदर है या जिस तरह की चीजें ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरा ख्याल है कि सीरियस लीगल चैलेंजेस जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए इस केस के अंदर। एहसान साहब बोलने से गुफ्तगू करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस में इस्तफसार किया कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। क्या गैर मुतअल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की दिफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया? सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं वो डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने सवाल किया कि क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया? आर्मी एक्ट की दफात के आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाज फैसले में दिया गया है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, आर्मी एक्ट के तहत केस चले तो मुल्ज़िम के बुनियादी हुकूक खत्म हो जाते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। अगर अवान सदर पर हमला होता है तो मुल्ज़िम का ट्रायल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आदिल बाज़ई की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर करी गई। उन्हें बतौर रुकन असम्बली बहाल कर दिया गया। डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आदिल बज़ई की दरख्वास्त पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने आदिल बज़ई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इन्हें बतौर रुकन असम्बली बहाल कर दिया गया। अदालत ने कहा तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवाल उठाए। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, आदिल बज़ई केस में हक़ाइक़ जानने के लिए कमीशन ने क्या किया? आपने किस इख्तियार के तहत बग़ैर तहकीक एक बयान हल्फी दुरुस्त मान लिया? इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ का तयन कैसे किया? इलेक्शन कमीशन ने 63A के तहत आदिल बज़ई को कौमी असम्बली से डी-सीट कर दिया था। 26 नवंबर को जो झांसी की रानी बन रही थी वो आज मुंह छुपा रही हैं। बुशरा बीबी आज अच्छे बच्चों की तरह खामोश हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असफ़ बुखारी की तनकीद। कहा 24 और 26 नवंबर को जोशीले खिताब करने वाली आज अपना इनकलाबी भाषण पेशावर छोड़ आई। बुशरा बीबी मीडिया को बताएं कि डी चौक से भागने का प्लान उनका था या अली अमीन गंडापुर का था। आज कौम को बता दें कि डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। पाकिस्तान और चीन के माबैन इक़्तिसादी और तिजारती ताउन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दोनों मालिक के अवाम बिलख़ुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से बिलावल हाउस में चीन के कारोबारी वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने मुल्की शुबा सेहत के तरक्की के लिए पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया, जबकि मईशत के मुख्तलिफ शोबों बिलख़ुसूस ज़राअत, लाइव स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी में भी दिलचस्पी ज़ाहिर की। सदर मुमलिकत का कहना था कि चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और मदद फराहम करने के लिए पुरज़्म हैं।
कराची सिटी कौंसिल इजलास में शोर शराबा, जमात इस्लामी और PTI के बल्दियाती नुमाइंदगान ने एहतजाज किया। जाली मेयर नामंजूर और करप्शन बंद करो के नारे लग गए। कराची में सिटी कौंसिल का ऐवान मछली बाजार बन गया। इजलास के मौके पर अरकान का शोर शराबा, मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी, जमात इस्लामी और PTI के बल्दियाती नुमाइंदगान का एहतजाज, जाली मेयर नामंजूर, करप्शन बंद करो के नारे। जमात इस्लामी और PTI के बल्दियाती नुमाइंदगान ने KMC बिल्डिंग में एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। उनका कहना था कि मेयर कराची सिर्फ PP को यूसीज में फंड्स जारी करते हैं। अरकान का कहना था कि KMC को करप्ट अफसरान से भरा जा रहा है। मेयर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी लाएंगे। बल्दियाती नुमाइंदगान ने मुतालबा किया कि तरक्याती फंड्स बराह रास्त टाउन्स को दिए जाएं। और भी आपको बताएं कि बदनीयती पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर JIT ने PTI के सोशल मीडिया इंचार्ज अजहर मिशवानी समेत दीगर मुल्जिमान को कल तलब कर लिया है। IG इस्लामाबाद ने मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए हैं। मुल्जिमान ने सोशल मीडिया मुहिम के जरिए मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाया। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम, मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैलाया। मुल्जिमान जुम्मे को JIT में तलब। IG इस्लामाबाद ने PTI के सोशल मीडिया इंचार्ज अजहर मिशवानी, सिब्बतुल्लाह वर, मोहम्मद अतहर, कोमल आफरीदी और दीगर मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए हैं। मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाया। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर जराइम की रोकथाम के लिए PK एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत IG पुलिस के मातहत एक मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी। JIT मुल्जिमान और उनके साथियों के पसे पर्दा मकासद का तयन करने के लिए मामले की तहकीकात कर रही है। दीगर अफराद की शनाख्त और उनके खिलाफ कवानीन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। JIT के बाद मुल्जिमान के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। आलमी अदालत इंसाफ में मौसमियाती तब्दीली पर रियासतों की जिम्मेदारी पर समाअत हुई है। इस मौके पर पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से फौरी निपटने का मुतालबा कर दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। दुनिया अब मौसमियाती मसाइल को नज़रअंदाज करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान जारी है। एक और दिन रिकॉर्ड साज रहा। दूसरी जानिब सोने की कीमत बेलगाम हो गई। डॉलर की कदर में भी इजाफा देखा गया है। स्टॉक मार्केट में एक और दिन अच्छा रहा। एक दिन में नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स में 3,370 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी आई। 100 इंडेक्स 1,14,180 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इससे कबल 100 इंडेक्स 1,14,408 पॉइंट्स की बुलंद सतह तक भी ट्रेड हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 17 पैसे से बढ़कर 278 रुपए 23 पैसे पर बंद हुआ। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत 2,300 रुपए बढ़कर 2,82,800 रुपए हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोना 2,42,455 रुपए हो गया है। सूद से पाक कर्ज कैसे मुमकिन, वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत को तरीक़ेकार बता दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने शरई उसूलों पर अमल दरामद मसले का हल करार दिया। कहा कि सुकूक के जरिए सूद से पाक कर्ज मिल सकता है। मुआशी निज़ाम की तब्दीली हुकूमत की तरजीहात में शामिल, वज़ीर ख़ज़ाना ने वाज़ेह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, माली निज़ाम शरई उसूलों पर मुंतकिल करने के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान में इस्लामी मुआशी हब के तौर पर उभरने की सलाहियत है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामी कैपिटल मार्केट अहम करार दी। उनके मुताबिक सुकूक सूद से पाक कर्ज के लिए अहम है। दुनिया में वैल्यू फाइनेंशियल खिदमात की मांग बढ़ रही है। कहा, मुआशी चैलेंजेस दरपेश थे, उन्हें हल किया है। हमारी मुआशी सिमत दुरुस्त है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कि कीड़े मार अद्वियात के स्प्रे का असर या फिर बेएहतियाती। कराची में एक बच्चे की जान चली गई। घर के 6 अफराद बेहोशी की हालत में पाए गए हैं। फ्यूमिगेशन को दोष दें या वजह कुछ और, कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहर में अफसोसनाक वाकया पेश आ गया। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन शेख की रिहाइशगाह से 6 अफराद बेहोशी की हालत में मिले, जिनमें से एक बच्चा जान से जा चुका था। मरने वाले की शनाख्त 5 साला मोइनुद्दीन के नाम से हुई, जबकि डॉक्टर ज़ियाउद्दीन शेख समेत अहलिया और 4 बच्चे बेहोशी की हालत में पाए गए। वाकया उस वक्त पेश आया जब अहले खाना सो चुके थे। पुलिस के मुताबिक घर में फ्यूमिगेशन करवाई गई थी, जो मुमकिना तौर पर वाकये की वजह बनी। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन शेख क़य्यूमाबाद पर वाक़ अस्पताल के मालिक हैं।
गैर महफूज शहरी फिर बेलगाम लुटेरों का शिकार बने। स्ट्रीट क्रिमिनल्स अब घर की दहलीज पर वारदात कर रहे हैं और कराची के शहरी बेबसी की तस्वीर बने हैं। सीसीटीवी फुटेजेस सामने आने के बावजूद मुल्जिमान आजाद हैं। घात लगाना किसे कहते हैं, कराची में साबित हुआ। गुलशन मेमार में नौजवान खतरे से बेखबर तहम शिकारी ताक चुका है। 2 मोटरसाइकिल्स पर 4 लुटेरों ने घेरा और घर की दहलीज पर लूट कर भाग निकले। किस्सा यहीं तमाम न हुआ, दूसरे किरदारों के साथ मंसूर कॉलोनी में कहानी दोहराई गई। मोटरसाइकिल सवारों ने सरेराह खातून को धमकाया और लूट मार के बाद रफू चक्कर हो गए। माल गंवाने के बाद खातून भी आगे बढ़ गई। दोनों वाकयात सीसीटीवी में आ गए, लेकिन एक भी मुल्जिम गिरफ्तार न हुआ। गुज़िश्ता 10 माह के दौरान मुल्क में दहशतगर्दी के 1500 से ज़ायद वाक़यात रोनुमा हुए। इन वाक़यात में 900 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं, जबकि 550 से ज़ायद सिक्योरिटी अहलकारों की शहादत हुई है। 341 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। वज़ारत दाखिला ने रवा बरस होने वाले दहशतगर्दी की कार्रवाई की तफसीलात पेश कर दी। वज़ारत दाखिला की जानिब से पेश की जाने वाली तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 10 माह के दौरान मुल्क में दहशतगर्दी के 1566 वाक़यात, 45 वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा और 582 बलूचिस्तान से रिपोर्ट हुए। दहशतगर्द कार्रवाइयों में 924 अफराद शहीद, 2121 जख्मी हुए। 573 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 1353 जख्मी हुए। KPK में दहशतगर्दी के वाक़यात में 583 अफराद शहीद, 1375 जख्मी हुए। 437 सिक्योरिटी अहलकार शहीद, जबकि 1059 जख्मी हुए। बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में 307 अफराद शहीद हुए। 110 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। सिंध में 24 दहशतगर्द कार्रवाइयों में 17, जबकि पंजाब में 16 अफराद दहशतगर्दी का निशाना बने। 10 माह के दौरान मुल्क भर में 12,801 इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ की गईं। 341 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस 800 अफराद को गिरफ्तार किया गया। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि कौमी रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गैलेस्पी ने टेस्ट सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक गैलेस्पी अपने नायब टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी न होने पर PCB से नाराज है। PCB ने रेड बॉल टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी न करते हुए उनसे राहें जुदा कर ली थी। ज़राए का कहना है कि क्रिकेट बोर्ड नेल्सन की जगह मकामी कोच को तरजीह देना चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रेड बॉल टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन से राहें जुदा कर ली हैं। टिम नेल्सन को रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गैलेस्पी अपने साथ लाए थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए उनके मुआहदे में तोसी नहीं की गई है। क्रिकेट वेबसाइट से गुफ्तगू में नेल्सन का कहना था कि वो तोसी मिलने के मुंतज़िर थे, लेकिन PCB ने बताया कि आपकी मज़ीद खिदमात दरकार नहीं हैं। टिम नेल्सन का तकर्रुर रवा साल अगस्त में किया गया था। कश्मीरियों की जायदादों पर भारतीय कब्जे की मज़म्मत करते हैं। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन मसालिम ढाए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग बताया, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तारीखी मुआहदा तय पाया है। उन्होंने कहा कि शाम की सूरत हाल खित्ते के लिए ख़तरा है, वहाँ अमन का क़याम ज़रूरी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मुतालबा किया कि गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम फ़ौरी बंद किया जाए। आलमी बरादरी गज़ा में इंसानी अलमिया का नोटिस ले। पाकिस्तान गज़ा में जंगबंदी की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का खैर मकदम करता है। Their commitment to enhance bilateral cooperation in trade, energy, agriculture, manufacturing, education and tourism. Pakistan welcomes the UNGA resolution of yesterday demanding an immediate and unconditional ceasefire in Gaza and removal of restrictions against UNRWA in its aid operations in Gaza Strip and the West Bank. Pakistan is deeply concerned at Israeli aggression against Syria, its illegal seizure of Syrian territory and widespread destruction of Syrian infrastructure and civilian and military installations. In this week of commemorating 77 years of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, we express our solidarity with the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, who continue to suffer widespread human rights abuses by the Indian occupation forces. इजराइल ने गजा के इलाके खान यूनिस में इमदादी कारवां पर ड्रोन हमला कर दिया है। 12 अफराद की जान ले ली है। इलाके में खुराक का शदीद बहरान है। इजराइल ने ड्रोन हमले में इन सिक्योरिटी गार्ड्स को निशाना बनाया जो इमदादी कारवां की हिफाजत पर मामूर थे। वाक़े में दर्जनों लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। इमदादी कारवां गज़ा के शुमाल में जा रहा था कि जहां लोग भूख से मर रहे हैं। इजरायली फ़ौज ने मुहासरा कर रखा है।
मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में काबिज भारतीय पुलिस ने शहीद सैयद अली गिलानी की रिहाइशगाह पर छापा मारा। उनकी कुतुब और अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुलिस ने 1 घंटे तक अली गिलानी के घर का मुहासरा किए रखा। भारतीय पुलिस ने तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के दफ्तर पर भी छापा मारा, ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। 5 रोज़ा अलमी कुतुब मेला कराची एक्सपो सेंटर में सज गया है, जहां एक छत तले किताबों का खजाना शुरका को अपनी जानिब खींचने लगा है। कुतुब मेले के पहले रोज़ ही शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मरियम हसन से। मरियम, अपडेट कीजिएगा। 5 रोज़ा कुतुब मेला आज सज गया है एक्सपो सेंटर कराची में। 3 हॉल्स में जो है ये मेला आलीशान तरीके से जो है वो जारी है। तलबा और तालबात की एक बड़ी तादाद है जिसने आज पहले रोज़ ही जो है मेले में शिरकत की है। इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या समझती हैं डिजिटलाइजेशन के इस दौर में बुक फेयर कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं? देखिए, आजकल के दौर में सारे लोग मोबाइल में ज़्यादा चले गए हैं, हर कोई चैट GPT और ये सारी चीज़ें करता है, तो हम इस सारे बुक्स और इन सारी चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं। यहाँ पर आकर हमें रियलाइज़ होता है कि बुक्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ना बुक्स की वजह से ही हमें ज़्यादा नॉलेज भी मिलती है और मोबाइल से निकलकर हम बुक्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। यहाँ पर ऑफ कोर्स किताब होती है, मोबाइल तो देखिए हमें नेट की ज़रूरत होती है, ये होती है वो होती है, लेकिन किताबें आपकी वो दोस्त हैं जो आपको कभी भी कहीं भी कितनी भी नॉलेज दे सकती हैं। तो स्टूडेंट्स की जो है बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पर पहुँची है अपने इंटरेस्ट की किताबें। बहुत शुक्रिया मरियम, अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट polynews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।